ملک کے لوگ ہر وقت مشکلات میں رہتے ہیں۔ جی ہاں، ہم آج بات کریں گے فلسطین کی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلسطین کی تاریخ اور غزہ کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ غزہ کے لوگ اپنی زندگی اس جنگ سے پہلے کیسے گزار رہے تھے اور فلسطین کے اہم مقامات کون سے ہیں، فلسطین کے لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے، اور یہ غزہ اسٹرپ کیا ہے جہاں ہزاروں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، یہاں آج بھی ان کے نقوش دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پوری دنیا کو سودی بینک سسٹم میں جگڑنے والے خود پر سود حرام رکھا ہوا ہے۔ تینوں ابراہیمی مذہب اسلام، یہودیت اور کرسچن میں کیا چیز مشترک ہے، اور بہت سے ایسے حقائق فلسطین کے بارے میں بتائیں گے جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ چلیں اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیلسٹائن، جسے اردو میں فلسطین کہتے ہیں، مشرق وسطی کی اسلامی ریاست جس کا کل رقبہ 6220 مربع کلومیٹر ہے۔ فلسطین کا دارالحکومت بیت المقدس ہے اور اسرائیل بھی اس جگہ کو اپنا دارالحکومت مانتا ہے، جسے یہودی جیروزلم کہتے ہیں۔ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اسرائیلی زبردستی بیت المقدس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جو قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی کوشش کی گئی، وہ ایک مسلمانوں کا ٹیسٹ تھا کہ ان میں کتنا ایمان باقی ہے، جس کا رزلٹ ان کی نظر میں یہ نکلا کہ ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ ہم کچھ بھی کریں گے تو یہ آگے سے کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ سلطان عبدالحمید کے دور میں بھی بے حرمتی کی کوششیں کی گئیں، لیکن اس وقت مسلمانوں نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور آج کے دور میں ہم بس مذمت کر کے چپ ہو جاتے ہیں، اس لیے آج وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو کاٹ رہے ہیں۔ فلسطین کا سب سے بڑا شہر غزہ ہے۔ اگر ہم فلسطین کے بارڈر کی بات کریں تو ایک طرف اسرائیل، مغربی اردن، جنوبی شام، مغربی لبنان اور بحیرہ روم واقع ہے۔ اگر فلسطین کی تاریخ کی بات کریں تو اس ایریا میں مصر، یونان، شام، رومن، فارس اور صلیبیوں نے حکومت کی۔ 638 عیسوی سے 640 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل طور پر فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1095 میں صلیبیوں نے مسلمانوں کی قتل و غارت کی اور خون کی ندیاں بہا کر بیت المقدس پر اپنا قبضہ کر لیا۔ 1291 تک صلیبی جنگوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور 1516 میں سلطنت عثمانیہ نے قبضہ کر لیا۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد یہاں انگریزوں نے فوجی حکومت قائم کی، اور ان کی حکومت کے دوران یہودیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیونکہ یہودیوں کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے اربوں سے مہنگے داموں زمین خریدنا شروع کر دی اور آباد ہونا شروع ہو گئے۔ تاریخ میں کچھ ایسے واقعات بھی ہیں کہ مسلمانوں نے یہودی مہاجرین کو انسانیت کے ناطے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی، تو اس گھر پر یہودیوں نے قبضہ کر کے مسلم فیملی کو باہر نکال دیا، اور اسی طرح وہ پورے فلسطین میں قبضہ کرتے رہے۔ 1933 میں جب یہودیوں کو ہٹلر نے مارنا شروع کیا تو یہودی تیزی سے فلسطین کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ اس کی اہم وجہ بیت المقدس تھی، جو یہودیوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد عربوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیاں جاری رہیں۔ 1936 میں انگریزوں نے فلسطین کو یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی، اور اس میں یہ بھی کہا کہ بیت المقدس کا ایریا آزاد رہے گا جہاں کوئی بھی عبادت کے لیے آ سکے گا، لیکن عربوں نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ 1947 میں اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا، جس نے فلسطین کو تقسیم کرنے کی تجویز منظور کر لی۔ اس طرح 15 مئی 1948 کو فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ناجائز ملک اسرائیل وجود میں آ گیا۔ اس کے بعد بھی عربوں نے جنگیں بھی لڑیں، لیکن مسلمانوں کی نااتفاقیوں کی وجہ سے اسرائیل تمام جنگیں جیتتا رہا۔ غزہ فلسطین کا شہر جو رقبے کے لحاظ سے 350 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی کل آبادی 22 لاکھ کے قریب ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ شہر بہت زیادہ گنجان ہے۔ اسرائیل کے مظالم کی وجہ سے انہیں ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس شہر کے 2 اطراف میں اونچی اونچی دیواریں ہیں، اور ایک طرف مصر کا بارڈر اور دوسری طرف بحیرہ روم ہے۔
पहले ये पूरे मुल्क के साथ राब्ते में थे, लेकिन बाद में इनके इर्द गिर्द दीवार करके एक जेल की तरह शहर बना दिया गया। अगर आप नक्शे में देखें तो गजा एक पतली सी पट्टी की शक्ल में है, जिसे गजा स्ट्रिप भी कहा जाता है। ये दीवार 1994 में यहूदियों ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इनके इर्द गिर्द खड़ी कर दी। गजा में रहने वाले कुछ लोग काश्तकारी करके अपना गुजारा करते हैं, जबकि ज्यादातर लोगों को काम के गर्ज से इसराइल के दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। दोस्तों, आपको एक हैरानकुन हकायक बताता चलूं कि जब कोई फलस्तीनी गजा से बैतुल मुकद्दस या किसी भी और इलाके में जाना चाहे तो इसको तंग और लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता है, जबकि इसराइलियों ने अपनी रोड पर फलस्तीनियों को आने पर पाबंदी लगा रखी है। अब हम बात करेंगे फलस्तीन के दूसरे शहर बैतलहम की। बैतलहम का मतलब द हाउस ऑफ मीट है, जिसकी तारीख बहुत पुरानी है। ये शहर भी मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए बहुत अहम है। ये शहर बैतुल मुकद्दस के काफ़ी करीब है और ईसाइयों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इसी शहर में हुई थी, जहां आज ईसाइयों का पहला चर्च, जिसे चर्च ऑफ नेटिव कहते हैं, मौजूद है। और मुसलमानों के लिए इसलिए अहम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मस्जिद भी इसी शहर में मौजूद है, जहां आपने नमाज अदा की थी। ये शहर ज़्यादातर मुसलमानों के कंट्रोल में रहा है और यहूदियों के लिए अहम होने की वजह यह है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इसी शहर में हुई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी इसी शहर में मिली थी। अब हम बात करेंगे फ़लस्तीन के शहर हिब्रोन की। ये शहर भी फ़लस्तीन के अंडर है। इसकी कुल आबादी 2 लाख के करीब है। ये शहर भी तारीखी इतबार से बहुत पुराना है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी इसी शहर में मौजूद है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहूदी भी मानते हैं, इसलिए यहाँ एक मस्जिद मौजूद है जिसे इब्राहिमी मस्जिद कहते हैं। दोस्तों, एक हैरानकुन बात बताता चलूं, ये मस्जिद आदि मुसलमानों के पास और आदि यहूदियों के पास मौजूद है और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक इसी मस्जिद के बेसमेंट में मौजूद है। एक दरवाज़ा मुसलमानों के लिए रखा गया है और दूसरा दरवाज़ा यहूदियों के लिए रखा गया है। अब बात करेंगे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से शहर की नेबलूस की। ये शहर भी फ़लस्तीन का सबसे पुराना शहर है और एक अंदाजे के मुताबिक ये दुनिया की 4थी पुरानी सिटी है। सबसे पुरानी सिटी जेरिको, उसके बाद दमिश्क, फिर अलेप्पो और चौथे नंबर पर नेबलूस है। यहाँ 1000 साल पुरानी मस्जिद भी मौजूद है और यहाँ के लोग भी बहुत मेहमान नवाज हैं और इस शहर के बाजार एक तारीखी मंजर पेश करते हैं। इस वीडियो में हम आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आखिरी आरामगाह की ज़ियारत करवाएंगे। मुल्क में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह के साथ साथ ऐसी बेशुमार जगह मौजूद हैं जो तीनों मज़हबों के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। दोस्तों, बाय एयर जाने के लिए आपको तल अवीव जाना पड़ता है, जिसका पुराना नाम जाफा है, जिसके साथ समुंदर लगता है। ये वही जगह है जहां हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन तक जिंदा रहे। दोस्तों, आपके इल्म में लाता चलूं, तल अवीव का नाम कहां से आया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 970 साल कबल मसीह में जिनों की मदद से एक बड़े हैकल की तामीर शुरू की। तामीर के दौरान आपका इंतकाल हो गया। आप एक लकड़ी के साथ टेक लगाकर खड़े थे। जिन ये समझ के तामीर करते रहे कि आप जिंदा हैं। इसी दौरान जिन्होंने इस हैकल की तामीर मुकम्मल कर ली। ये एक वसीअ व अरीज आलीशान हैकल था। इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत करते थे, दरमियान वाले हिस्से में अंबिया की औलाद और उलमा इबादत करते थे, जबकि अंदरूनी हिस्से में तबूत सकीना रखा गया था। इस हिस्से में आलम के अलावा किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। 586 कबल मसीह में इराक के बादशाह बख्त नसर ने हैकल को तबाह कर दिया, लोगों को गुलाम बना लिया और तबूत सकीना उठा कर ले गया। शहर के बाहर एक बस्ती तामीर की जिसमें इन गुलामों को रखा गया और इस बस्ती का नाम तल अवीव रखा गया। तबूत सकीना अल्लाह ताला की तरफ से इसे किसी मखसूस मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हज़रत मैमूना पूछती हैं, अल्लाह के पैगंबर यरूशलेम के बारे में बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ज़मीन इकट्ठे होने और दोबारा जी उठने वाली जगह है।
اس کے اندر جاؤ اور نماز پڑھو۔ اس جگہ کی ایک نماز دوسری جگہوں کی 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ یروشلم دنیا کا واحد شہر ہے جسے مسلمان، عیسائی اور یہودی مقدس مانتے ہیں۔ اندرون یروشلم میں 90% فلسطینی مسلمانوں کی دکانیں ہیں۔ قدیم یروشلم شہر کے 7 دروازے ہیں اور اس کو 4 کوارٹر میں تقسیم کیا گیا ہے: مسلم کوارٹر، آرمینین کوارٹر، کرسچن کوارٹر اور جیوش کوارٹر۔ یروشلم 3 پہاڑوں پر مشتمل ہے: جبل موریہ، جبل سیون اور ماؤنٹ اولیو۔ ماؤنٹ اولیو وہ پہاڑ ہے جو یروشلم کو صحرائی یہودا سے الگ کرتا ہے۔ مسجد الاقصی سے ماؤنٹ اولیو اونچائی پر نظر آتا ہے۔ یروشلم شہر کے خوبصورت نظارے کے لیے یہ جگہ بہترین ہے۔ اس کے پاس ہی سلمان فارسی کی مسجد بھی ہے۔ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی یہاں رہا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کئی واقعات ماؤنٹ اولیو پر وقوع پذیر ہوئے تھے۔ آپ نے تبلیغ کا عمل بھی یہیں سے شروع کیا۔ روم آف دا لاسٹ سپر وہ کمرہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے ساتھ جمعرات کی رات کو قیام کیا تھا اور آخری مرتبہ کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں میں اٹھا لیا تھا۔ یہاں پر ایک محراب بھی ہے۔ مسلمان یہاں نماز پڑھتے ہیں اور عیسائی یہاں اپنی عبادت کرتے ہیں۔ ماؤنٹ اولیو پر ایک مسجد موجود ہے جس کا نام مسجد السعود ہے۔ اس مسجد کی بھی تاریخی بہت اہمیت ہے۔ 12ویں صدی عیسوی میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو فتح کیا تو اس جگہ مسجد تعمیر کی۔ اس جگہ پر ایک پاؤں کا نشان بھی موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ مسیحی زائرین اس پر ہاتھ لگاتے ہیں اور موم بتیاں جلاتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماؤنٹ اولیو پر دوبارہ اتریں گے۔ اسی پہاڑ پر یہودیوں کی قبریں ہیں اور جہاں دفن ہونے کے لیے یہودیوں کو $10 لاکھ تک پے کرنا پڑتا ہے۔ روم آف دا لاسٹ سپر کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کی قبر ہے جس پر چادر چڑھائی گئی ہے۔ یہودی وہاں توریت کی تلاوت کرتے ہیں اور قبر کے درمیان مردوں اور عورتوں کے لیے پردہ لگایا گیا ہے اور یہودی یہاں آ کر اس کو چومتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے ان کا مسیحا دجال یہیں سے ان کی ٹیمپل کی بنیاد رکھے گا۔ اس کے بعد تمام دنیا پر ان کی حکومت قائم کرے گا۔ ان کے جھنڈے پر ستاروں کا مطلب کنگڈم آف داؤدی ہے اور نیلے رنگ کی پٹیاں دریائے فرات اور دریائے نیل کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی ہماری حکومت جہاں تک ہوگی۔ محترم ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم مسلمانوں اور کرسچن دونوں کے نزدیک مقدس ہستی ہیں۔ مسیحیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نعوذ باللہ مانتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک انہیں خدا کا برگزیدہ بندہ جنہیں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور یہودی انہیں نبی نہیں مانتے۔ یہودی توریت کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کی عبادت گاہ کو سیناگوگ کہا جاتا ہے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا مسیحا نہیں مانتے بلکہ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں جو ایک آنکھ والا ہوگا۔ مسلمانوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور شام کی جامع مسجد میں ہوگا۔ دوستو، اسرائیل میں لیز پر اپارٹمنٹ لیتے ہوئے شرط رکھی جاتی ہے کہ جب ان کا مسیحا دجال آئے گا تو آپ کی یہ لیز ختم ہو جائے گی۔ مسجد ماروانی میں حضرت مریم علیہ السلام کی اعتکاف کی جگہ بھی موجود ہے جو مسجد اقصی کے بیسمنٹ میں ہے۔ یہودی دن میں 3 مرتبہ عبادت کرتے ہیں، صبح، سپہر اور شام کو۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ، یہودیوں کے لیے ہفتہ اور عیسائیوں کے لیے اتوار مقدس دن ہیں۔ یروشلم میں حضرت مریم علیہ السلام کی قبر مبارک بھی موجود ہے۔ یہ قبر کدرون ویلی میں ماؤنٹ اولیو کے پاس موجود ہے۔ یہ چھوٹی سی غار جیسی جگہ ہے جس پر کپڑا اور شیشہ لگا ہے۔ لوگ یہاں درباروں کی طرح پیسے بھی گراتے ہیں۔ یاد رہے، حضرت مریم علیہ السلام بھی یہودی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے معجزات دے کر عیسائیوں کے نزدیک فرائیڈے کو گڈ فرائیڈے کہا جاتا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے مطابق جمعے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کرنے کی کوشش کی گئی اور جو تکالیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے برداشت کی اس سے پوری کرسچینٹی کے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا۔ آج بھی اس راستے سے کرسچن صلیب لے کر گزرتے ہیں اور اس راستے کو وایا دولوروسا کہا جاتا ہے، یعنی دکھوں کا راستہ، اور چرچ آف دا ہولی سپرچول پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ بلیک فرائیڈے کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیت لحم میں ہوئی، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، لیکن کس تاریخ کو ہوئی اس کا اندازہ صرف اتنا ملتا ہے۔ سورہ مریم کے مطابق
उस वक्त गर्मियों का महीना था और बाग में खजूरों का मौसम था। बैतुल मुकद्दस कब और किसने तामीर किया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इस सरजमीन पर जुल्म क्यों होते थे? पहला चर्च कौन सा था और बैतुल मुकद्दस तीनों मजहबों के लिए अहम क्यों है? यरूशलेम, जिसे कुद्स भी कहते हैं, 2 हिस्सों में तकसीम है, ईस्ट यरूशलेम और वेस्ट यरूशलेम। वेस्ट का पार्ट यहूदियों के पास है और ईस्ट का पार्ट अरबों के पास है। पुराना यरूशलेम 4 हिस्सों में बना हुआ है, जिसमें मुस्लिम क्वार्टर, ज्यूश क्वार्टर, क्रिश्चियन क्वार्टर और आर्मेनियन क्वार्टर है। आर्मेनियन भी क्रिश्चियन है, लेकिन ये एक अलग फिरका है। सबसे बड़ा क्वार्टर मुस्लिम क्वार्टर है और इस पुरानी सिटी के 8 दरवाजे हैं, जिनमें से 7 दरवाजे खुले हुए हैं और हर क्वार्टर को कोई ना कोई दरवाजा जरूर लगता है। एक दरवाजा जो बंद है उसको गोल्डन गेट कहते हैं। मुसलमानों के मुताबिक जब इमाम मेहंदी आएंगे तो इस गेट से दाखिल होंगे और उस वक्त तक ये दरवाजा बंद रहेगा। ज्यादातर विजिटर जाफा गेट से जाते हैं। जब आप इस गेट से दाखिल होते हैं तो इस रोड को उमर बिन खत्ताब रोड कहा जाता है। ये सिटी चारों तरफ से दीवारों के अंदर बनी हुई है और ये दीवारें सल्तनत उस्मानिया दौर में बनाई गई थी। बैतुल मुकद्दस को हाइट पर बनाया गया है और मुसलमान इस जगह को हरम शरीफ कहते हैं। इसके नीचे जो दीवार है उसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, जहाँ यहूदी इबादत करते हैं। और जो आपको गोल्डन गुंबद नजर आ रहा है, ये गुंबद सहरा है। और जो ग्रे रंग वाला गुंबद और खस्ता हाल बिल्डिंग देख रहे हैं, वो मस्जिदुल अक्सा है। ज्यादातर लोग गोल्डन गुंबद को ही मस्जिदुल अक्सा समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसके चारों तरफ तंग गलियां हैं और बाजार बने हुए हैं। गोल्डन गुंबद को डोम ऑफ द रॉक भी कहा जाता है। ये अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। ये जगह क्रिश्चियन के लिए ज्यादा अहम नहीं, इसी वजह से एक जमाना में क्रिश्चियन यहाँ पर कचरा फेंका करते थे। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ आए तो यहूदियों के एक राबी से पूछा, कौन सी जगह जो तुम लोगों के लिए सबसे ज्यादा अहम है? तो उस राबी ने जवाब दिया, यहूदियों के लिए वो जगह सबसे ज्यादा अहम है जहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे, और ये वही जगह है जहाँ पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी की बुनियाद रखी थी। बाद में वो राबी मुसलमान भी हो गया था। यहूदियों और मुसलमानों ने मिलकर इस जगह को साफ किया और उमय्यन खिलाफत में इस पर गुंबद बना दिया गया। इसके अंदर दरमियान के हिस्सा अभी भी पत्थर का है, जहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के टेम्पल की बुनियादें मौजूद हैं। इस जगह पर मुसलमानों के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं, और यही वजह है कि यहूदी इस जगह को नुकसान नहीं पहुंचाते। इस पूरे गुंबद को सोने से तैयार किया गया है। मुस्लिम क्वार्टर पर आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों ने घर जबरदस्ती बनाना शुरू कर दिए हैं ताकि मुस्लिम क्वार्टर में मुसलमानों की आबादी को कम किया जा सके। क्रिश्चियन क्वार्टर में चर्च मौजूद है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई किया गया था, और वहां खाली कब्र भी मौजूद है। इस चर्च के बिल्कुल सामने मस्जिद उमर मौजूद है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बताएंगे। यहूदियों के मुकद्दस किताब के मुताबिक यहूदियों का साल सितंबर में शुरू होता है, और अबरानी में इस दिन को गोश हशानात यानी साल का सर कहा जाता है। इनके कैलेंडर ने 5783 साल पूरे कर लिए हैं, और इनके अकीदे के मुताबिक दुनिया के हादमे में 217 साल बाकी हैं। ये बच्चों को किस तरह ट्रेन कर रहे हैं? इनका मानना है दुनिया में आने वाला हमारा बच्चा दुनिया का लीडर बनेगा, बिलियन ऑफ डॉलर कंपनी बनाएगा, बिजनेस करेगा। यहूदियों का अकीदा है कि इंसान की तहलीक यरूशलेम में हुई थी, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी भी यहाँ की थी। मुसलमानों के मुताबिक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर जाने से पहले 1,24,000 अंबिया कराम की इमामत भी इसी जगह पर करवाई थी। मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अक्सा भी यहीं पर मौजूद है। ये शहर अंबिया कराम का शहर है, जो 4000 साल कबल मसीह से भी ज्यादा पुराना है। 638 ईस्वी में बगैर जंग के हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको फतह कर लिया। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु यरूशलेम की चाबियां लेने आए तो ईसाइयों के एक पैट्री सफरोन ने चर्च दिखाना शुरू कर दिया। उसी दौरान नमाज का वक्त हो गया। पैट्रोन ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को चर्च के अंदर ही एक जगह नमाज अदा करने की दावत दी, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरे बाद आने वाले मुसलमान फिर यहीं पर नमाज पढ़ना ना शुरू कर दें। उन्होंने एक पत्थर जोर से चर्च के बाहर फेंका, और जहाँ ये पत्थर गिरा वहाँ उन्होंने नमाज पढ़ी। आज वहीं पर मस्जिद उमर मौजूद है। इस मस्जिद की दीवार के साथ एक एग्रीमेंट पत्थर पर अरबी में लिखा हुआ है, जो ईसाइयों और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान हुआ। दुनिया का सबसे पहला चर्च भी यहाँ पर बनाया गया था। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये जगह फतह की तो चर्च की चाबियां 2 मुसलमान खानदानों के हवाले कर दी।
क्योंकि दो ईसाई ग्रुप चर्च पर कब्जा करने के लिए लड़ते थे और ये दोनों फिरके एक दूसरे पर इतबार नहीं करते थे। इसलिए चर्च का दरवाजा मुसलमान खानदान का ही शख्स रोजाना खोलता था और बंद करता था, और आज तक ऐसा ही हो रहा है। लूत इसराइल का एक ऐसा शहर है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल के दरमियान आखिरी मार्का होगा। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे यहूदी कैसे इबादत करते हैं। इनका मौजू 3 से 4 मरतबा हाथों को धोना है, सर पर टोपी पहनते हैं जिसे कैफा कहते हैं, माथे पर भी और बाएं बाजू पर चमड़े का टिफलिन बॉक्स बांधते हैं, कंधों पर शाल लेते हैं और दीवार गिरिया के पास आकर इबादत और तलावत करते हैं, और इसके अलावा रोते और दुआएं भी मांगते हैं। बैरून ममालिक से आने वाले अपने दोस्तों के दुआया हतूत जो अल्लाह के नाम पर होते हैं, वो इन दीवारों में मौजूद दर्जों में फंसा दिए जाते हैं। ये अमल ट्रम्प ने भी किया था। ये नमाज भी पढ़ते हैं, हाथ बांध कर क़याम की हालत में ऊंची आवाज में तुरैत की तलावत करते हैं, टोपी पर हाथ रख कर सजदा करते हैं, और आखिरी रकत में रुकू की हालत में पहले बाएं और फिर दाएं जानब सलाम फेरते हैं, और फिर दोनों जानों पर बैठकर दुआ मांगते हैं, और आखिर में जमीन पर उल्टा लेट जाते हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा गरगद के दरख्त भी इसराइल में लगाए जाते हैं, और इसका जिक्र हमारी अहादीस में भी है। ये वही दरख्त है जिसके पीछे ये यहूदी छुपेंगे। बहुत सी ऐसी चीजों का हुक्म हमें है, लेकिन अमल वो कर रहे हैं। सूद बनाने वाले वो हैं, और सूद उनके लिए हराम है। सूद इस्लाम में भी हराम है, लेकिन यहाँ पर सूद अब आम हो चुका है। इनका सबसे बड़ा फिरका अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूश है, जो अपने दीन में किसी किस्म की रद्दो-बदल नहीं होने देते। काले कोट, काले हैट पहनते हैं और साइडों पर लिटें निकालते हैं, दाढ़ी और मूंछें नहीं कटवाते। यहूदियों की इबादत गाह को सिनेगोग कहते हैं। इनकी इबादत का दिन जुम्मे की रात से शुरू होता है और हफ्ते की रात तक जारी रहता है। इस दिन को शबात कहते हैं। इसराइल ने क़यामत से कबल 2 अहम काम करने हैं, तबूत सकीना की तलाश और हैकल सुलेमानी की तामीर। ये कहानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थी, हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा थी, और हजरत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालदा थी। 40 साल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में रहाइश पजीर रहे। आपने खाना काबा को तामीर किया और आप वापस फलस्तीन तशरीफ ले गए। वहाँ आपने अल्लाह का दूसरा घर बैतुल मुकद्दस को तामीर फरमाया। खाना काबा और बैतुल मुकद्दस की तामीर के दौरान 40 साल का फर्क है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन में इंतकाल फरमाया। आपका रोजा मुबारक यरूशलेम के मज़ाफ़ात में है। ये इलाका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुनासबत से हेबरून या अल हलील कहलाता है। बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ये लोग कहत का शिकार हुए और मिस्र की तरफ नकल मकानी की। फिरौन की गुलामी में गए और कई 100 साल गुजर गए। 3300 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फलस्तीन में वापस आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1000 कबल मसीह में यरूशलेम को फतह किया और इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया, जिसे किंगडम ऑफ डेविड कहते हैं, और अपने लिए एक शानदार महल तामीर करवाया जिसे फर्स्ट टेम्पल कहा जाता है। और तबूत सकीना भी इनके पास मौजूद था। इस ताबूत में वो पत्थर की तख्तियां भी थीं जो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कोह तूर पर उतारी थी। इन तख्तियों पर अल्लाह के 10 अहकामात दर्ज थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और वो बर्तन भी था जिससे मन सलवा निकलता था। जंगों में ये ताबूत लश्कर के आगे रखा करते थे और इसकी मदद से फतह हासिल कर लिया करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल तमीर करवाना शुरू किया। आपके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह तामीर जारी रखी। हजरत सुलेमान के दौर में बड़े बड़े जादूगर भी थे। आपने अल्लाह के हुक्म से इन तमाम जादूगरों को कत्ल करवा दिया और इनके जादू के नुस्खों को भी इस संदूक में बंद कर छुपा दिया। यहूदी इस हैकल को हैकल सुलेमानी कहते हैं। यह हैकल 586 कबल मसीह में बाबुल के बादशाह ने तबाह कर दिया और इस तरह फर्स्ट टेम्पल बिल्कुल खत्म हो गया। ताम इसने हैकल सुलेमानी की बैरूनी दीवार छोड़ दी। आज भी यहूदी इसी जगह पर मातम करते हैं। यहूदी इस दीवार को कोतल, जबकि मुसलमान इसको दीवारे गिरिया कहते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर आरी मोहलत के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा और यहूदियों ने इनकी सबसे ज्यादा मुखालफत की और इन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। असल में यहूदी अपने मसीह के इंतजार में थे जो आकर इन्हें पहले वाली शानो शौकत अता करता, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दीन की तजदीद नौ शुरू की। यहूदी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश कर डाली। अल्लाह ताला ने आपको उठा लिया और इस जुर्म अजीम की वजह से अल्लाह ने बनी इसराइल को मनसब इमामा से महरूम कर दिया। चुनांचे कुछ अरसे बाद यहूदियों ने रूमियों के खिलाफ, जिसके बदले में पूरे यरूशलेम को तहस नहस कर डाला और यहूदियों को फलस्तीन से ऐसा निकाला कि वो 2000 साल तक वापस न लौट सके। जब बरतानिया ने फलस्तीन पर कब्जा किया
तो पूरी दुनिया से यहूदी इकट्ठे करके इस जगह पर दोबारा बसा दिए, जिससे एक नाजायज यहूदी रियासत का क़याम अमल में आया। ताबूत सकीना कहाँ है किसी इंसान को नहीं मालूम। यहूदी इस ताबूत को हासिल करने के लिए पूरे अर्ज को खोदना चाहते हैं, और आज जो कुछ आप टीवी पर देख रहे हैं ये सब इसी चीज की वजह है। यहूदी पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं और उस ताबूत सकीना को हासिल करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। आपको दिखाएंगे मस्जिदुल अक्सा अंदर से कैसी बनी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर कदम मुबारक रख कर मेराज पर गए थे। वो कौन से मकाम है जहां खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया की इमामत फरमाई। बैतुल मुकद्दस, मस्जिदुल अक्सा और कुब्बत सहरा में क्या फ़र्क है? मस्जिदुल अक्सा की तारीख बहुत पुरानी है। ये ज़मीन पर बनाए जाने वाली दूसरी मस्जिद थी और आज मुसलमानों के लिए तीसरी अहम तरीन मस्जिद की हैसियत रखती है। इस जगह 5 लाख से ज़ायद लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिदुल अक्सा को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि बैतुल मक़दस, दीवार बुराक, मस्जिद किबली, मस्जिद मरवान, मकाम बराक, दीवार गिरिया और हरम शरीफ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा तामीर किया और अपने दूसरे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ मस्जिदुल अक्सा को तामीर किया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद आगे मुसलमान और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद यहूदी कहलाई। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस को संभाल लिया। इसके बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास नबूवत आई और इनके 12 बेटे थे, जिसमें से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत से नवाजा। ये सब मिस्र में आबाद हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब आए तो अल्लाह के हुक्म से आपने अपने लोगों को मिस्र में मौजूद फ़िरौन से बचाया और लोगों को दोबारा फ़लस्तीन की तरफ ले आए। इस तरह बनी इसराइल दोबारा फ़लस्तीन की तरफ आबाद हो गए। उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। उन्होंने दोबारा मस्जिदुल अक्सा की तामीर का काम शुरू किया, क्योंकि मस्जिदुल अक्सा सिर्फ खंडरात बन चुकी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस काम को अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल ना कर सके। इस काम की जिम्मेदारी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पैगंबर थे। आपने मस्जिदुल अक्सा की तामीर को मुकम्मल किया। इराक के बादशाह ने 587 BC में बैतुल मक़दस पर हमला किया और चंद दीवारों के अलावा सब तबाह कर दिया। इसने यहूदियों का कत्ले आम किया और इनके मजहबी सहीफों को भी जला दिया। कुछ अरसा बाद ईरान ने यरूशलेम को फतह कर लिया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम भी इसी शहर में रहती थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी मुकद्दस शहर में पैदा हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 70 साल बाद रोम के लोगों ने मस्जिदुल अक्सा पर हमला कर दिया। इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया, सिर्फ चंद दीवारें ही बची। वाक़ई मराज तक ये मस्जिद ऐसे ही रही। मुसलमान पहले इसकी तरफ रुख करके इबादत करते थे, लेकिन बाद में अल्लाह के हुक्म से इनका किबला खाना काबा को बना दिया गया। लेकिन मस्जिद अक्सा का रुतबा मुसलमानों के दिलों में ज़रा बराबर भी कम नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 साल बाद मुसलमानों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में मस्जिदुल अक्सा को फतह कर लिया। इसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत में कुब्बत सहरा की तामीर की गई। 1099 में सलीबियों ने इस पर दोबारा कब्जा कर लिया और मुसलमानों की खून की नहरें बहा दी। जब नूरुद्दीन जंगी का दौर आया तो बैतुल मक़दस को ईसाइयों से हासिल करने के लिए मुहिम शुरू कर दी, जिसकी तकमील सलाहुद्दीन अयूबी ने की। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि 3 चीज़ें अलग अलग हैं: कुब्बत सहरा, मस्जिदुल अक्सा और बैतुल मक़दस। जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है गोल्डन गुंबद, जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र शुरू किया था, इसे कुब्बत सहरा कहते हैं। और इस पूरे इलाके को, जिसके इर्द गिर्द 4 दीवारी भी हुई है, जिसपे मस्जिदुल अक्सा भी शामिल है, इसे बैतुल मक़दस कहते हैं। और ये है मस्जिदुल अक्सा जो कुब्बत सहरा के बिल्कुल सामने मौजूद है। इस मस्जिद में औरतों के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है, जहां औरतें अलग से नमाज पढ़ सकती हैं। मस्जिदुल अक्सा की ज़ियारत क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मस्जिदों के लिए सफ़र किया जाए। पहली मस्जिदुल नबवी, दूसरी मस्जिदुल हराम और तीसरी मस्जिदुल अक्सा। कुरान पाक में भी मस्जिदुल अक्सा का जिक्र आया है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان 16 سے 17 مہینے تک اس کی طرف رخ کر نماز پڑھتے رہے ہیں۔ مسجد الاقصی میں بھی نماز پڑھنے کا ثواب ہزاروں نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد الاقصی کا دوسرا نام قبلی مسجد بھی ہے۔ اندر سے یہ مسجد بہت خوبصورت اور بہت یونیک ہے۔ آرکیٹیکچر بھی بہت خوبصورت ہے۔ اندر سے یہ مسجد شام میں موجود امیہ مسجد سے ملتی جلتی ہے۔ جو آپ ویڈیو میں ممبر دیکھ رہے ہیں، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ممبر ہے، جو ابھی تک 1200 سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہے۔ یہ لکڑی سے بہت ہی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے۔ اس مسجد کے نیچے بیسمنٹ میں قدیم مسجد الاقصی یعنی پرانی مسجد الاقصی موجود ہے، جس کی سیڑھیاں باہر کی طرف سے نیچے جاتی ہیں۔ یہ حصہ سب سے پرانا حصہ ہے جہاں لوگ آ کر نفل نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور اس جگہ پر بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھایا جاتا ہے۔ دوستو، یہ گولڈن گنبد جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عبد الملک بن مروان نے بنوایا تھا۔ اس کے ساتھ جو چھوٹے سائز میں آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ ماڈل بنایا گیا تھا کہ اس کو ایسے تیار کیا جائے گا۔ اس وقت یہ گنبد گرے رنگ کا تھا۔ اردن کے بادشاہ شاہ حسین نے 1993 میں اس پر 200 کلو سونے کو اس گنبد پر چڑھایا۔ اس کے اندر وہ مبارک پتھر یا چٹان موجود ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں مبارک رکھ کر معراج کا سفر شروع کیا، اور اس کے باہر ایک جگہ موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یہاں پر امامت فرمانے کے بعد آپ اندر قبۃ صحرا کی چٹان پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مصلی بنایا گیا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ نے قدم مبارک رکھے اور آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ چٹان کے نیچے بھی جگہ موجود ہے جہاں لوگ 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں۔ دوستو، آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تھے، اس وقت یہ بلڈنگ موجود نہیں تھی، صرف چٹان موجود تھی، اور نہ ہی یہ جگہ مسلمانوں کے پاس تھی۔ یہ تمام علاقہ رومنز کے قبضے میں تھا۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ اس چٹان کے نیچے تابوت سکینہ موجود ہے، اور یہودیوں کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چٹان کے اوپر کرنا چاہتے تھے، اور یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا مسیحا آئے گا اور اسی چٹان کے اوپر قربانی کرے گا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس جگہ کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر جانے کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک بھی اس کے اندر موجود تھے، لیکن اب وہ موجود نہیں ہیں۔ اس پورے حصے کے 9 گیٹ ہیں۔ ان میں سب سے خوبصورت گیٹ دمشق گیٹ ہے۔ اس کے چاروں طرف میں دیواریں موجود ہیں، اور اس کو اولڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں بہت سی چھوٹی چھوٹی دکانیں اور بازار موجود ہیں۔ یہ جگہ مسلم کوارٹر کا بازار ہے جہاں اکثر لوگوں کا رش رہتا ہے۔ ارد گرد کی بلڈنگ بھی بہت پرانی اور خستہ حال ہیں۔ کپڑے، جائے نماز اور دوسری چیزیں یہاں لوگ بیچتے ہیں۔ بازار سے ہوتے ہوئے آپ لائن گیٹ سے مسجد الاقصی کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بازار سے نکلیں گے تو سب سے پہلی نظر آپ کی قبۃ صحرا پر پڑے گی۔ یہودی اس جگہ کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہودیوں کا پہلا اور دوسرا ٹیمپل موجود تھا۔ پہلا ٹیمپل حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اور دوسرا ٹیمپل ہیرود جو اسرائیل کنگڈم کے کنگ تھے، انہوں نے بنایا تھا۔